Hello everyone, this is Chaitanya Kaushik and today we are going to discuss class 9th mathematics chapter 7 that is triangles. So यहाँ पर ई कोड गिवन है, तो जिसको भी इस बुक की ऑनलाइन कॉपी चाहिए तो यहाँ पर जाकर पढ़ सकता है. So let's start with the basic introduction. So you have studied about triangles and their various properties in your earlier classes. So you know that a closed figure formed by three intersecting lines is called a triangle. So a triangle has basically three sides, that is A, B, BC and CA. Today we are going to discuss about the angles, angle A, angle B and angle C, and with the corresponding vertices A, B, C, which are the three vertices of the triangles. So in this chapter we will study in detail about the congruence of triangles, rule of congruence, and some more important properties of triangles related to the inequalities of the triangles. So moving towards the next topic, that is the congruence of triangles. So simply here the congruence of triangles mean the congruent figures. So we must remember the figures, like if we match the two ATM cards, then they are exactly same and they are exactly identical. And if we place a 1 rupee coin over a 1 rupee coin, then it is also identical. So here the congruency of triangle means that we are having two congruent figures, which means exactly equal in all respect of figures whose shapes and sizes are both the same. So let us now draw the two circles which are of the same radius and we will place them over the other. So we will observe that they cover each other completely और हम उनको वहाँ पे congruent circles कहते हैं. तो अगर हम इस एक्टिविटी को रिपीट करें स्क्वायर्स के ऊपर भी, तो we will observe that we are having two squares. तो अगर हम उनको एक दूसरे के ऊपर रख देते हैं, so we will observe that the squares also cover each other completely. Similarly, the case happens with the two equilateral triangles. If we place two equilateral triangles of equal sides on each other, then we will observe that the triangles also cover each other completely. So these triangles are called congruent triangles. So आप वंडर कर रहे होगे कि भाई हम congruence क्यों पढ़ रहे हैं इसमें. So आपने ये भी ऑब्जर्व किया होगा कि जो रेफ्रिजरेटर में जिसमें हम आइस को जमाते हैं, तो वहाँ पर जो आइस के जो मोल्ड होते हैं वो भी congruent होते हैं. So the cast used for molding in the tray also has congruent depression. So whenever identical objects have to be produced, the concept of congruence is used in making the cast. कई बार अगर आपके पेन की रिफिल खत्म हो जाती है और हम उसमें दूसरी रिफिल डालते हैं, तो कई बार वो रिफिल सेम साइज की नहीं होती, अपनी जो ओरिजिनल वन होती है, तो हमें काफ़ी दिक्कतें आती हैं उस रिफिल को वापस से पेन में डालने में. सो अगर रिफिल्स जो है सेम होती, कॉन्ग्रेंट होती, तो ये आसानी से फिट हो जाती. तो इसी वजह से हम कॉन्ग्रेंसी पढ़ते हैं. तो अगर हम इन स्क्वायर्स की फिगर में देखें तो यहाँ पे साफ साफ पता चल रहा है कि स्क्वायर 1 और स्क्वायर 4 आपस में कॉन्ग्रेंट हैं. और अगर हम इन ट्राइंगल्स में देखें तो क्या ये ट्राइंगल्स आपस में कॉन्ग्रेंट हैं? तो हाँ, बिल्कुल ये आपस में कॉन्ग्रेंट है, क्योंकि अगर इनकी साइड ये 5 सेंटीमीटर है, ये 4.5 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे भी साइड 5 सेंटीमीटर है, ये 4.5 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर है. सिमिलरली यहाँ पर बट इस वाले केस में साइड तीनों 5 सेंटीमीटर है. तो ये चारों तो आपस में कॉन्ग्रेंट है, बट ये डिफरेंट है. तो मेरे पास जो ट्रायंगल है PQR और जो ट्रायंगल है APC, तो ये आपस में कॉन्ग्रेंट हैं. तो हम इनको इस तरीके से लिख सकते हैं, इक्वल टू के ऊपर ही हल्का सा साइन लगा देते हैं, तो इससे कॉन्ग्रेंसी का पता चलता है कि दैट ट्रायंगल PQR इज कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल ABC. सो हेयर P इज कॉन्ग्रेंट टू A, Q is congruent to B and R is congruent to C. तो हम इसको CPCT लिखकर डिनोट कर देते हैं, that congruent triangles congruent parts, these are equal and we write in short CPCT for corresponding parts of congruent triangles. यानी कि मेरे पास जो congruent triangles हैं उनके जो corresponding parts हैं वो भी आपस में congruent हैं. तो इस वजह से हम उसे शॉर्ट फॉर्म में CPCT लिख देते हैं. तो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, that is criteria for congruence of triangles. तो अगर मैं दो ट्राइंगल्स ड्रॉ करता हूँ, मेरे पास एक ट्राइंगल है DEF, मैंने उसकी एक साइड ड्रॉ करी है 3 सेंटीमीटर की, और मेरे पास एक दूसरा ट्रायंगल है ABC, मैंने भी उसकी एक साइड ड्रॉ करी है 3 सेंटीमीटर की. तो ये क्या आपस में कॉन्ग्रेंट हैं? तो अगर मैं देखूंगा तो भाई ये आपस में कॉन्ग्रेंट नहीं है. क्यों? क्योंकि इनकी जो बाकी दूसरी साइड्स हैं वो भी कॉन्ग्रेंट नहीं है. तो इस वजह से ये ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रेंट नहीं है. तो अगर एक ट्रायंगल को दूसरे ट्रायंगल के साथ कॉन्ग्रेंट होना है, तो हमें ये रखना पड़ेगा कि जो उसकी साइड्स या तो तीनों साइड्स इक्वल हो, या फिर एक एंगल इक्वल हो, दो साइड्स इक्वल हो, या इस तरीके से हम चेक करते हैं ट्रायंगल की कॉन्ग्रेंसी. वही हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं. सो अगर मैंने यहाँ पे ट्रायंगल ड्रॉ किया जिसकी एक साइड है 4, एक साइड है 4, एक एंगल है 50, एक एंगल 50, तो क्या ये आपस में कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल्स हो गए? तो ये भी ट्रायंगल्स आपस में कॉन्ग्रेंट नहीं है. तो हमने ये ध्यान देंगे कि अगर एक पेयर ऑफ साइड किसी ट्रायंगल की इक्वल है, या फिर एक पेयर ऑफ साइड या एक पेयर ऑफ एंगल किसी ट्रायंगल का इक्वल है, तो ये सफिशिएंट नहीं है ये बताने के लिए कि वो ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हैं या नहीं. तो उसके लिए कंडीशन होनी क्या चाहिए आखिरकार? कंडीशन कुछ इस तरीके से हो सकती है, जैसे मेरे पास ये ट्रायंगल है कोई,
इसकी कोई एक साइड है 4 सेंटीमीटर, ठीक है, उसका एक एंगल है 50 डिग्री पे जो बन रहा है, यहाँ पे भी एक एंगल 50 डिग्री बन रहा है, ठीक है भाई, और यहाँ पर जो साइड है वो कट कर रही है 2 सेंटीमीटर पे, तो इसे हम बोलते हैं साइड एंगल साइड। तो ये साइड एंगल साइड की प्रॉपर्टी से एक ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं, तो बिल्कुल ए सी और पी आर भी आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे, तो इस वजह से ये दोनों ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं। इसलिए हम एक एग्जाम से डिनोट करते हैं, वो है साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल। टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ टू साइड्स एंड द इंक्लूडेड एंगल ऑफ वन ट्राइंगल आर इक्वल टू द साइड्स एंड द इंक्लूडेड एंगल ऑफ अदर ट्राइंगल। तो आपके जो भी डाउट्स हैं वो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। जितने भी एग्जांपल्स और एक्सरसाइजेज होंगे वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे और आपके डाउट्स भी नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो अब हम क्या करते हैं, दो ट्राइंगल्स कंस्ट्रक्ट करते हैं जिसकी एक साइड है 4 सेंटीमीटर और एक साइड है 5 सेंटीमीटर, और जिनमें से कोई एक एंगल है 50 डिग्री। अब यहाँ पर जो एंगल है वो दो साइड्स के बीच में इंक्लूडेड नहीं है, तो अब हम देखते हैं कि ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है क्या। तो ये 4 हो गया, ठीक है भाई, ये 5 हो गया, ठीक है, तो हमने क्या किया, 50 डिग्री एंगल यहाँ पे बना दिया और यहाँ पे भी एक 50 डिग्री, तो ये ट्राइंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट नहीं है। सो एसएस कॉन्ग्रुएंस रूल होल्ड्स बट नॉट एएसएस और एसएसए। तो अगर एंगल साइड साइड या साइड साइड एंगल की कोई प्रॉपर्टी है तो वो ये नहीं बता सकती कि ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है या नहीं। तो जो प्रॉपर्टी जो बताती है कि ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है वो है साइड एंगल साइड, यानी कि जो एंगल है वो दो साइड्स के बीच में होना चाहिए। हमारे पास अब एक और प्रॉपर्टी है, वो है एंगल साइड एंगल। अगर मेरे पास एक एंगल है, फिर एक मेरे पास साइड है, फिर एक एंगल है, सिमिलरली यहाँ पर दोनों तीनों सेम है, तो अब मैं कह सकता हूँ कि मेरे जो ट्राइंगल्स हैं दोनों वो कॉन्ग्रुएंट हैं। तो इसलिए जो एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया फॉर कॉन्ग्रुएंस which is also written as ASA criteria, so the property of ASA criteria verifies that the triangle is congruent. So मेरे पास next theorem आ जाती है ASA congruency rule, that two triangles are congruent if two angles and the included side of one triangle are equal to the two angles and the included side of other triangle. सो मेरे पास दो ट्राइंगल्स हैं, लेट से ए बी सी और डी ई एफ। तो यहाँ पर बी इज इक्वल टू ई है, सी इज इक्वल टू एफ है और बी सी इज इक्वल टू ई एफ है। तो वी नीड टू प्रूव दैट ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल डी ई एफ। तो यहाँ पे 3 केस अराइज होते हैं। पहला केस कि लेट ए बी इज इक्वल टू डी ई। तो अब हम क्या ऑब्जर्व करते हैं कि हमने एज्यूम तो कर लिया ए बी इज इक्वल टू डी ही है, और हमने ये भी देख लिया गिवन है हमारे पास कि एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई, और ये भी गिवन है कि बी सी इज इक्वल टू ई एफ। सो एस रूल से क्या हो जाएगा, ये जो ट्राइंगल है आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। केस 2 क्या बनता है कि लेट अस पॉसिबल ए बी इज ग्रेटर देन डी। तो हम क्या ले सकते हैं, हमारे पास कोई पॉइंट है पी ए बी पर सच दैट पी बी इज इक्वल टू डी। अब हम कंसिडर करेंगे दोनों ट्राइंगल्स को, तो हम देखते हैं कि पी बी इज इक्वल टू डी है, तो हमने कंस्ट्रक्ट करके इक्वल कर दिए है, ये हमारे पास गिवन थी दोनों कंडीशन। तो अब हम क्या कंक्लूड करते हैं कि ट्राइंगल पी बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल डी ई एफ बाय द एस एस एग्जाम फॉर कॉन्ग्रुएंस। केस 3 हमारे पास क्या बनता है, केस 3 हमारे पास बनता है कि इफ ए बी इज लेस देन डी। एक बार ऊपर वाले केस को भी देखते हैं कि अगर, तो अब हमारे पास एंगल पी सी बी क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा एंगल डी एफ ई के। तो वी आर गिवन डेट एंगल ए सी बी इज इक्वल टू एंगल डी एफ ई। सो एंगल ए सी बी इज इक्वल टू एंगल पी सी बी। तो अब हमारे पास बी ए इज इक्वल टू ई डी हो गया, और इससे हम कह सकते हैं कि डेट ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू डी ई एफ। केस 3 पर आ जाते हैं डेट साइड ए बी इज लेस देन डी ई। सो वी कैन चूज अ पॉइंट एम ऑन डी ई। हमने डी ई पर एक पॉइंट ले लिया एम सच डेट एम इज इक्वल टू ए बी, और हमने जो केस 2 में जो जितने भी आर्गूमेंट्स थे उनको रिपीट किया। सो हम ये कंक्लूड करेंगे डेट ए बी इज इक्वल टू डी एंड सो ट्राइंगल ए बी सी इज ऑल्सो कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल डी ई एफ। अब लेट्स सी कि मेरे पास जो ट्राइंगल है उसमें जो दो एंगल्स थे उनके बीच वाली साइड इक्वल ना होकर उनके कोई बराबर वाली साइड इक्वल हो गई है, तो अब भी क्या ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होगा। सो लेट्स सी कि क्या ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होगा या नहीं। सो द टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ एनी टू पेयर ऑफ एंगल एंड वन पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल। वी मे कॉल इट एट AAS कॉन्ग्रुएंसी रूल। तो हाँ भाई, ये बिल्कुल सही बात है कि AAS कॉन्ग्रुएंसी रूल से हम बता सकते हैं कि ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है या नहीं। तो ये ज़रूरी नहीं है कि साइड दोनों एंगल्स के बीच में हो, बल्कि साइड अगर बराबर वाली भी कंसिडर कर ले हम इक्वल, तब भी ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट माना जाता है।